Everybody needs meditation, whether you are in corporate sector or non-corporate sector, whether you are a householder or a cab driver, or whether you are a prime minister or a chief minister, or a professor in a college, or a student in a college. Everybody needs meditation, absolutely. If you are a human being, you can't do without meditation. If you are an animal being, then you don't have to worry about meditation. Animals don't need to do meditation. But if you are a human being, if you consider yourself a human being, then you can't do without meditation. That is the message of pyramid spiritual society movement. हर एक को ध्यान को अपनाना ही है, हर एक की जिंदगी में ध्यान होना ही चाहिए, बचपन से ही ध्यान में आना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। जैसे कबीर जी ने कहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। शुभ से शीघ्रम आलस्यम अमृतम विषम, a stitch in time saves 9. So if you happen to know about meditation today is the grand day for you to start meditation. And meditation answers all your questions. And meditation solves all your problems, A to Z. Whether it is physical problems or emotional problems or mental problems or economic problems or intellectual problems, spiritual problems, whatever it may be, all problems get solved by your own meditation. And it doesn't take any money to learn meditation. There is absolutely no money involved. Anybody can teach meditation to anybody else. Once you understand the technology of meditation, it is easiest to teach and easiest to practice. मेरा भारत महान है, और मेरा भारत महान होगा तभी तब प्रत्येक व्यक्ति ध्यानी बनेगा, तभी तो. And until and unless you become a meditator, you are not महान, and आपका अपना देश महान नहीं है. अपने से अपने देश महान बनती है. हमें महान बनना है. हम कैसे बनते हैं महान? भगवद गीता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से हम महान बनते हैं. Everybody should become mahan, whether you are in the corporate sector or in the non-corporate sector, whether you are in politics or in the teaching sector, whether you are a householder, whether you are a normal mother or father. And meditation, my dear friends, I have found it is the easiest thing to do. मेडिटेशन बार बार हमें समझना है कि मेडिटेशन इज कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि, अल्लाउद्दीन अद्भुत दीप. मेडिटेशन इज वज्रायुध. पुराणों में हम जितने भी सुनते आ रहे हैं, या कामधेनु या कल्पतरु, चिंतामणि, वज्रायुध इत्यादि इत्यादि, ये सब ध्यान के ही पर्याय पद है. We have to understand this perfectly, that meditation gives you everything. It is the kamadhenu, it is the kalpataru, it is the vajrayud, it is the Airavat, it is the Akshay Patra, it is the Alauddin Adbuddi. What do you get from Alauddin Adbuddi? Whatever you want. अब अक्षय पत्र से क्या पाएंगे? जो कुछ भी आप चाहते हैं. कल्पतरु, कामधेनु क्या देते हैं हमें? जो कुछ भी आप चाहते हैं, अपने ही मुंह मांगे देम आपको मिल जाएगी. So meditation, and that too Anapanasati meditation. There are hundreds and thousands of so-called methods of meditation, but there is only one universal method, the easiest method, which I encountered about 40 years back. In my search for truth, I slowly unraveled Anapanasati meditation. I had gone to many types of meditations, but I was not happy there. Finally, when I came to Anapanasati meditation, I was happy. I reached my goal. मेरा मकसद मुझे मिल गया.
Anapanasati is, ana means inhalation, apana means exhalation, sati means to be with. अपने सांसों के साथ हमें रहना चाहिए. Just being with the breath. और with all the sincerity, with all the seriousness. श्रद्धा के साथ ध्यान की अभ्यास करना चाहिए. श्रद्धा is a Sanskrit word which means sincerity plus seriousness is equal to Shraddha. That is the definition of Shraddha. महात्मा गांधी जी के हाथों में हमेशा भगवद गीता रहता था, इसलिए वो महान बने. हम क्यों नहीं पढ़ते हैं भगवद गीता? हम क्यों नहीं बनते हैं महात्मा? गौतम बुद्ध भगवान बन चुके हैं, तो हम क्यों नहीं बनते हैं भगवान? अगर एक बंदा गांधी जी के जैसे बन गया है तो हम सब बन सकते हैं. अगर एक बंदा बुद्धा के जैसे बन गया है तो हम सब बन सकते हैं. बुद्धा ने सब कुछ बताया सबको. Everything he has revealed in spiritual science, in meditation. फिर भी हम अपने आप से वंचित हैं. आज से ऐसा नहीं हुआ ना. हम अपने आप को पकड़ लेना चाहिए. हम भी गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे. हम भी वर्तमान महावीर जी के जैसे बनेंगे. हम किसी से कम नहीं. We have to show the same sincerity and seriousness, same shraddha for our spiritual development. Whether you are in corporate or non-corporate, whether you are a housewife or a student in a school, whether you are a cab driver or whether you are an engineer or a doctor or a prime minister or a chief minister, it doesn't matter whoever you are, whatsoever you are, you have to spend sufficient time in meditation every day. After 24 hours a day, definitely 2-3 hours you must spend with closed eyes and observing the breathing. देखो देखो सांसों को देखो, आती जाती सांसों को देखो बाबा, बस उसी में सब कुछ है. आनापानसति एक बार हम करें तो जिंदगी भर की कहानी हमें आगे लेके जा सकते हैं. एक ही बार बैठना चाहिए तो मालूम हो जाएगी, एहसास हो जाएगी ध्यान की महत्व क्या है, ध्यान की आवश्यकता क्या है. हर बच्चा, हर बच्ची, हर बूढ़ा, हर बूढ़ी, हर अमीर, हर गरीब, हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन, सभी के लिए है ध्यान. दिस इज साइंस. ये कोई मजहबी बात नहीं है. एक बार ध्यान करें तो जिंदगी भर की ध्यान की अभ्यास हमें उपलब्ध होती है. हमें जानकारी मिल जाती है भीतर से कि ध्यान क्या होता है. ध्यान के द्वारा हम समाधि स्थिति को पाते हैं, निर्विकल्प समाधि, जहां कोई सोच विचार नहीं है, मन शून्य हो जाती है. The worldly mind becomes spiritual mind. The worldly intellect becomes spiritual intellect. हम बुद्धा बन जाते हैं एक ही झटके में. पर तो हर दिन इसको अपनाना है. एक दिन अपनाए, फिर 40 दिन छोड़ दिए, फिर 40 दिन बाद और एक बार अपनाए, तो चलती नहीं गाड़ी. हर दिन ध्यान को अपनाना ही है. जैसे संगीत के हम रियाज करते हैं, बिल्कुल इसके ध्यान का रियाज करें. तभी तो हम संगीत में भीमसेन जोशी के जैसे बने थे, लता मंगेशकर के जैसे बनेंगे, विश्वनाथ कांति जैसे बनेंगे. कितना रियाज करते हैं वो लोग. तब उसी तरह हमें ध्यान का भी रियाज करनी चाहिए. If you are educated, you will immediately become a Buddha, because that is your first choice, to become a Buddha, to become enlightened. And who can give you enlightenment? You have to give enlightenment to yourself. दूसरा कोई आपके सर के ऊपर, माथा के ऊपर हाथ रखेगा और आपको ज्ञान देगा, ऐसा कोई भी होता ही नहीं. अगर बिस्मिल्लाह खान आपके सर के ऊपर हाथ रखे तो क्या आपको संगीत मिलेगा? नहीं मिलेगा. कपिल देव आपके सर के ऊपर, माथा के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या आपको क्रिकेट आएगी, बॉलिंग आएगी क्या? बिल्कुल नहीं. आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा. निरंतर अभ्यास, श्रद्धा से अभ्यास. हम भी संत बनेंगे. संत यानी सदा संतुष्ट. जब आप संत बन जाते हैं, आप सदा संतुष्टि बन जाते हैं. जैसे भी आपका जिंदगी की परिस्थितियां हो, आप सदा संतुष्ट रहते हैं. उसी को हम कहते हैं संत.
आपका बच्चा मर भी गया है, फिर भी आप संतुष्ट। आपको कोविड आ गया है, फिर भी आप संतुष्ट। आपके सारे पैसे चले गए, फिर भी आप संतुष्ट। ये है संतों की बात। हमें संत बनना ही है। हम अनेक अनेक ग्रंथ ले चुके हैं अभी तक, परंतु संत क्यों नहीं बने हम? गजब की बात है, शोचनीय स्थिति है। हम इतने जन्म लिए, फिर भी हम संत के जैसे नहीं बनेंगे, नहीं बन चुके हैं। परंतु इस जन्म में ऐसा नहीं होगा। जो PSSM है आपके सहारे के लिए, सब कुछ बताने के लिए, आपको प्रोत्साहन देने के लिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है बाबा, आपको दिशा देने के लिए, आपको घर में बिठाकर ज्ञान को सिखाने के लिए PSSM है। दिन और रात एक कर PSSM काम कर रही है, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ला में।